Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pre-9th class for General Mathematics, chapter number 1. This chapter is related to percentage, ratio and proportion. In this video we cover exercise 1.4, question number 4 and 7 is in classwork and question number 6 and 9 is in your homework. So again, this exercise is related to ratio, and you know that ratio is the comparison of two quantities having same measuring units. I already explained you the concept of ratio in my previous lecture. So I'm directly going to question number 4. So let's see. Question number 4. A square A has a side 2 cm and a square B has a side 6 cm. Find the ratio of. Okay, first of all आप ज़रा इस शेप्स को देख लें. यहाँ पे वो कह रहे हैं एक आपके पास स्क्वायर ए है, उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर्स की, सारी साइड 2 सेंटीमीटर्स की. ऑब्वियसली जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं. एंड स्क्वायर बी है द साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ. आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है. किसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है? पार्ट 1 में द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी. Side of square A 2. What's the meaning of this 2? This 2 means ratio sign. Length of sides of square A is your antecedent, ratio sign, and then the length of side of square B is your consequent. Look at this figure. This is square A because each side of square A is of 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. And this is square B and its sides are 6 centimeter, 6 centimeter, 6 centimeter and then 6 centimeter. स्क्वायर बी की भी सारी साइड्स बराबर की हैं, सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर्स की हैं, और स्क्वायर ए की सारी साइड्स बराबर हैं, सब साइड्स 2 सेंटीमीटर की हैं. तो अब आपने सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करनी है स्क्वायर ए की किसी एक साइड को लेकर स्क्वायर बी की साइड के साथ. सो लेट्स सी. Length of side A is your antecedent, ratio sign. Length of side B is your consequent. What's the length of side A? 2 centimeter. And what's the length of side B? 6 centimeter. Okay. 2 centimeter length side A के बिल्कुल नीचे 2 centimeter लिख दिया. Ratio sign as it is. Length of side B की जगह पे 6 centimeter. In ratio we compare the quantities having same measuring units. Centimeter and centimeters are same. It's mean these 2 centimeters are cancelled with each other. So you obtain 2:6. In next step, cutting is possible. So 2 ones are 2, 2 threes are 6. Further cutting is not possible. That's why 1:3 is your answer, and it is actually the ratio of the side of square A to the side of square B. So now part 2. Part number 2. The perimeter of square A to the perimeter of square B. So first of all, we know about it. What is perimeter? Because there is lot of confusion between perimeter and area. Student बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कि area किसको बोलते हैं और perimeter किसको बोलते हैं, या वो perimeter और area को confuse करते हैं. तो पहले अपनी ये confusion clear करते हैं कि perimeter कौन सा है और area कौन सा है, and then इस part number 2 को start करते हैं. For the time being इसको यहाँ पे हम skip कर रहे हैं. Okay, have you seen this blue square? So perimeter, the distance around the edge of shape. What's the meaning of edge of shape? वो distance जो उसकी boundary पर किसी भी shape की जो boundary होती है, that is its perimeter. और perimeter calculate करने का बड़ा easy सा formula होता है sum of all boundaries. Sum of all boundaries. Here you can see that there are 4 boundaries. So you have to add these 4 boundaries and finally you obtain its sum, and this sum is the perimeter of required square. तो अगर आपको मेजर करना है कि सारे स्क्वायर के इर्द गिर्द उसके एजेस पर, उसके एजेस पर कितना डिस्टेंस था, आप उसकी सारी साइड्स को ऐड कर लें. ओके, तो ये तो था पेरीमीटर. सिर्फ साइड्स को ऐड करने से आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस अराउंड द एज. ये बाउंड्री को पेरीमीटर हम कह रहे हैं. एंड व्हाट इज़ एरिया? द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप.
किसी भी शेप के अंदर वाला सारा हिस्सा, ये जितना हिस्सा उन्होंने ग्रीन किया हुआ है, इस भी शेप के अंदर वाला सारा पोर्शन, सारा रीजन, दैट इज़ योर एरिया। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास एक गार्डन है, उस गार्डन में ग्रास भी उसके उसके जो इनसाइड रीजन है वहाँ पे सब पे ग्रास लगी हुई है, और उसके गार्डन के साइड पे उन्होंने एक फेंस लगाया हुआ है। यू नो व्हाट इज़ फेंस? मतलब जो बाउंड्री लगाई होती है गार्डन्स के साइड पे, लकड़ी की बाउंड्री, दैट इज़ फेंस। तो ज़रा देखते हैं इस एग्जाम्पल को। जी, ये देखें, जो फेंस लगा हुआ है, दिस फेंस इज़ एट द बाउंड्री। एंड अगर आपको ये फेंस लगाना है यू वांट टू नो डेट कि कितना फेंस आपको परचेज करना चाहिए, तो आपको यू मस्ट नो द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। मतलब आपको उसकी बाउंड्री का सिर्फ डिस्टेंस बताओ, इसकी पूरी बाउंड्री का डिस्टेंस क्या है, तो आप, या फिर उसका पेरीमीटर पता हो, क्योंकि बाउंड्री के डिस्टेंस को पेरीमीटर ही बोला जाता है। तो आप पेरीमीटर को जानते हुए इसका फेंस यहाँ पर लगा देंगे। बट अगर आपको यहाँ पर कारपेट की, जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ग्रास है, अगर हम ग्रीन ग्रास को 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने इस ग्रीन ग्रास की बजाय ग्रीन ग्रास वाला कारपेट बिछाना है, तो आपने सोचने कि आपको कितने कारपेट की ज़रूरत है। तो कारपेट हम लोगों ने बाउंड्री पे नहीं बिछाना, तो कारपेट आपने पूरे रीजन में बिछाना है, पूरे रीजन के अंदर। तो यू मस्ट नो द एरिया। तो द रीजन inside any shape is the area, and the sum of boundary of any shape is the perimeter. Got it? तो जो किसी भी शेप के अंदर वाला सारा हिस्सा होता है दैट इज एरिया, और उसकी किसी भी शेप की बाउंड्री सारी पेरीमीटर होती है। सो हम पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे थे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज योर एंटीसीडेंट एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज योर कॉन्सिक्वेंट। सोल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशियो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। what's the side of what's the side of square A? 2 centimeter. And what's the side of square B? 6 centimeter. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए में हमने स्क्वायर ए की सारी साइड्स का सम कर लेना है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी में भी स्क्वायर ऑफ बी की सारी साइड्स का सम कर लेंगे। तो स्क्वायर ए की 4 साइड्स थी, मीन्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, रेशो साइन एज इट इज़। पेरीमीटर ऑफ बी के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास स्क्वायर की सारी साइड 6 सेंटीमीटर्स की थी, डैट्स वाई अगर हम इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस पता करना है तो हम सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड देन प्लस 6 सेंटीमीटर। So here final answer is 8 centimeter, and here final answer is 24 centimeter, because 6 plus 6 12, 12 plus 6 18, 18 plus 6 24. So finally you obtain to 8 centimeter ratio 24 centimeter. As you see, centimeter and centimeters cancel each other. So by doing the cutting at the table of 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. अगेन कटिंग करते हैं, 2 2s are 4, 2 6 are 12. अगेन कटिंग इज पॉसिबल at the table of 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So 1:3 is the answer, and actually it is the ratio of the perimeter of square A to the perimeter of square B. Next is the third part, the area of square A to the area of square B. अच्छा, जैसे अब हमने पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर बी। एरिया ऑफ स्क्वायर ए के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर बी के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर ए की एक साइड 2 सेंटीमीटर की है और स्क्वायर बी की एक साइड 6 सेंटीमीटर की है। सो लेट्स डू दिस। Side multiply side means 2 centimeter multiply 2 centimeter, and here we have 6 centimeter multiply 6 centimeter. 2 2s are 4 centimeter, and centimeter multiply with each other gives you centimeter square. And in this case 6 6 are 36, and centimeter multiply with centimeter gives you centimeter square, like that. 4 centimeter square and 36 centimeter square. My units are same. These two units cancel each other. And by doing the cutting at the table of 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 carry, यहाँ 1 carry चला जाएगा 6 के साथ, 2 8s are 16. Again cutting is possible at the table of 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18. So it's your answer. So question number 9 is
quite similar to question number 4. Now at the question number 7. Two angles in a triangle are 54 degree and 72 degree. Find the ratio of third angle to the sum of first two. कह रहे हैं आपके पास एक ट्राइंगल है. ऑब्वियसली जब ट्राइंगल हमारे पास होता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और 3 ही इसके अंदर एंगल बने होते हैं ट्राइंगल के अंदर. जैसे आपको नज़र आ रहा है पर्पल एंगल, यहाँ पे एक पिंक शेड में एंगल नज़र आ रहा है और एक ग्रीन शेड में एंगल नज़र आ रहा है. तो ये मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल की शेप है और ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं. तो इन्होंने हमें फर्स्ट 2 एंगल्स गिवन कर दिए हैं. तो फर्स्ट एंगल इज़ 54 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज़ 72 डिग्री. वी डोंट नो अबाउट थर्ड एंगल. तो पहले सबसे पहले आपको थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है, बाद में हम रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्दर कैलकुलेशन. क्योंकि हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट करनी है थर्ड एंगल की फर्स्ट 2 के सम के साथ. फर्स्ट 2 के सम का मतलब पहले 2 एंगल्स का सम कॉन्सिक्वेंट होगा और थर्ड एंगल हमारे पास एज अ एंटीसीडेंट ट्रीट करेगा. तो हम लोगों ने फिर रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो पहले हमें थर्ड एंगल का पता होना चाहिए. थर्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने इनके नेम सपोज कर लिए हैं. फर्स्ट एंगल को मैंने नेम दे दिया एंगल ए. यू नो डैट एंगल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है. इसलिए मेरा पॉइंटर मूव करेगा ऐसे. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. एंगल ए इज़ 54 डिग्री, एंगल बी इज़ 72 डिग्री. मतलब एंगल ए आपको गिवन है, एंगल बी इज़ आल्सो गिवन. आपने थर्ड हमने कह दिया एंड थर्ड एंगल इज़ एंगल सी. थर्ड एंगल सी है जो कि हमारे लिए क्या है अननोन और हमने इसको कैलकुलेट करना है. डेट्स व्हाई आई कैन पुट हियर क्वेश्चन मार्क. सॉरी, देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक. इट इज़ एक्चुअली टी, नॉट वाई. सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि आप लोग जब अपने ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम करते हैं तो आपके पास फाइनली आंसर आता है 180 डिग्री, राइट. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें, चाहे वो जैसा भी ट्राइंगल हो, वॉट एवर विद द ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलीन ट्राइंगल हो सकता है, तो राइट ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है. उसके ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल हैं, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी. एंगल ए की नीचे आपने सब्सिट्यूट किया 54 डिग्री, एंगल बी के नीचे सब्सिट्यूट किए 72 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है. डेट्स व्हाई एंगल सी इज़ एज इट इज़ इक्वल साइन एज इट इज़ 180 डिग्री. 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री गिव्स यू 126 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज़ equals to 180 degree. You want to find out the value of angle C. It's mean at left hand side 126 degree disturb this angle C. So whenever we can transpose 126 degree, so it will become minus 126 degree here. So 180 degree minus 126 degree gives you 54 degree. So angle A is 54 degree, angle B is 72 degree and angle C is also 54 degree. तो हमारे पास अब तीनों एंगल आ चुके हैं. अब हमने अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू. तो थर्ड एंगल जो सा है हमारे पास वो कैलकुलेट हम लोगों ने किया ही क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड एंगल एज अ एंटीसीडेंट रिक्वायर्ड था. तो पहले हमने थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग दिस हिंट कि सम ऑफ द ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. इस हिंट का यूज़ करते हैं हमने थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लिया. तब हमने अपने थर्ड एंगल को एज अ एंटीसीडेंट ट्रीट करवाना है एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू और सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स को हम लोगों ने एज अ कॉन्सिक्वेंट ट्रीट करना है. थर्ड एंगल हमारे पास एंगल सी है, रेशियो सम ऑफ फर्स्ट टू का मतलब है एंगल ए और एंगल बी का सम. तो एंगल सी की जगह हम एंगल सी की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एंगल सी? 54 डिग्री. रेशियो साइन एज इट इज़. कॉन्सिक्वेंट में आपके पास सम है 2 एंगल्स का, तो एंगल ए की जगह आपने 54 डिग्री सब्सिट्यूट किया और एंगल बी की जगह 72 डिग्री. 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री गिव्स यू 126 degree and this 54 degree as it is. So cutting is possible at the table of 2. 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 14. Here 2 6s are 12, 2 3s are 6. Next. So this small 0 actually it's a sign of degree. So degree is the measuring unit of an angle. That's why we can just cancel this measuring unit and doing the cutting at the table of 3. 3 3s are 9. Sorry, 3 9s are 27. 3 9s are 27.
3 2s are 6, 3 1s are 3. Again, doing the cutting at the table of 3. 3 3s are 9, 3 7s are 21. So further cutting is not possible because there is no table in which 3 and 7 both occurred at the same time. So that's why 3:7 is the required answer, because it's the lowest form. Question number 9 and question number 6 of exercise 1.4 are in your homework, but I just want to give you one hint. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको उन्होंने ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, तो आप जिस तरह मैंने भी क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल के 2 एंगल दिए थे, मैंने इनको खुद से एंगल ए एंगल बी सपोज कर लिया. तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप उसमें खुद से पहले सपोज करिएगा. एक साइड को ए का नाम दे दीजिएगा, सेकेंड साइड को बी का नाम दे दीजिएगा, थर्ड साइड को सी का नाम दे दीजिएगा, और फिर इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा रेशो वगैरह. जो जो उन्होंने कॉम्बिनेशन रेशो के कैलकुलेट करने को कहे हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.